Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our sixth chapter, geomorphic processes. And our today's topic is erosion and deposition. So students, after the process of withering, the other process start working, and this process having two kind of different activity. Firstly the erosion and later on the depositional activity. So it means erosion involves acquisition and transportation of rock debris both. What it means? When a massive rock break into smaller fragments through the process of withering or any other processes, then erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glacier, winds, waves, they can remove and transport the rock debris from one place to another. And the transformation is depending upon the dynamics of each of these agents. ये जितने भी एजेंट्स हैं इनके डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का वर्क शुरू हो जाता है. स्टूडेंट्स, अब्रेशन by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion. इरोजन में रॉक डेब्रीज के द्वारा जो एक प्रोसेस होता है अब्रेशन, वो भी इंक्रीमेंट लाता है. अब्रेशन क्या होता है? जब डेब्रीज आपस में टकराती हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं अब्रेशन. तो बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, राइट. इरोजन की वजह से क्या होता है? रिलीफ फीचर जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी कि इरोजनल एक्टिविटी इस तरीके से रिलीफ फीचर को कम करती चली जाती है. That is, the landscape is worn down, and that means though withering aids erosion, it is not a precondition for erosion to take place. Withering, mass wasting and erosion are degradational processes. It is erosion that is largely responsible for continuous changes. Withering, erosional और mass wasting ये तीनों डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं, और इनमें से विदरिंग जो है ये एक लार्जली रिस्पॉन्सिबल और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि अर्थ के सरफेस पर जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी फिजियोग्राफी है, उनमें चेंज लेकर के आता है, उन्हें डिग्रेड करता है. स्टूडेंट्स, as indicated in the figure, denudational process like erosion and transportation are controlled by kinetic energy. इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों कंट्रोल किससे होते हैं? दे बोथ आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी. द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, ग्राउंड वाटर, राइट. सो ऑफ दीज, आउट ऑफ दीज, द फर्स्ट थ्री एजेंट्स, फर्स्ट थ्री मीन्स wind, running water and glacier, they all are controlled by the climatic condition, right. Whereas the remaining two agents means waves and groundwater, they are not controlled by climatic condition. Starting के तीन agents, wind, running water and glacier, ये according to climatic condition work करते हैं. They all are controlled by climatic condition. But later two agents means the waves and the groundwaters are not controlled by climatic condition, right. So let us discuss by the waves. In case of waves, it is the location along the interface of litho and hydrosphere. Waves का वर्क कहाँ होता है? Waves are working over the litho and hydro, the area where the litho and hydrosphere both are integrating. At that place, the waves are met. The waves are working. So, what is the area? This area called coastal plain. Coastal plain are those areas where the lithosphere and hydrosphere both are intermingled. So, if the rocks are permeable and soluble and water is available, only then karst topography develops. वहीं दूसरा ग्राउंड वाटर में क्या होता है? In the groundwater, it's depend upon the rocks.
इफ द रॉक्स आर सॉल्युएबल यानी कि पानी में डिसॉल्व होने वाली होती हैं, या फिर परमिएबल होती हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कास्ट टोपोग्राफी फॉर्मुलेट होती है, कास्ट टोपोग्राफी डेवलप होती है, राइट, एंड दिस is due to the groundwater. So in the next chapter we shall be dealing with the landforms produced by each of these agents. अभी तक हम जितने भी एजेंट्स की बात कर रहे हैं, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, वेव्स, इनसे जितने भी बनने वाले स्ट्रक्चर हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल बोथ, we discuss in our next chapter. Now deposition. Deposition is consequence of erosion. इरोजन का कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसका परिणाम होता है डिपोजिशन। जब कोई मटेरियल इरोड हो जाता है तो बाद में आगे चल करके उसमें डिपोजिशन का प्रोसेस अकर होता है। सो द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस एनर्जी। जब इरोजनल एजेंट अपनी वेलोसिटी और एनर्जी दोनों खो देता है ऑन जेंटल स्लोप्स, देन द मटेरियल कैरिड बाय देम स्टार्ट टू सेटल देमसेल्व्स। So in other words, we can say that deposition is not actually the work of any agent. The coarser materials get deposited first and the finer ones later. Depositional activity erosional agent के वर्क का कोई लेना देना नहीं है इनका आपस में। डिपोजिशनल एक्टिविटी सिर्फ जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होता जाता है वैसे वैसे होने वाली एक एक्टिविटी है। इसमें इरोजनल एजेंट कुछ नहीं करते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एंड हाउ कैन द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड और डिपॉजिटेड? फर्स्टली द कोरस मटेरियल। कोरस मीन्स जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहले वो डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद फाइनर मटेरियल में डिपोजिशन देखा जाता है। सो बाय डिपोजिशन डिप्रेशन गेट फिल्ड अप। डिपोजिशन एक्टिविटी से जो भी डिप्रेशन होता है यानी कि जो भी गहरा भाग होता है वो फिल्ड अप हो जाता है, भर जाता है। द सेम इरोजनल एजेंट्स नेमली रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर एक्ट एज अ ग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट। सेम वही एजेंट्स जिन्होंने इरोजन किया है और डिग्रेडेशनल एरिया जनरेट किया है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अग्रेडेशन के प्रोसेस के लिए। Now what happens to the surface of the earth due to erosion and deposition is elaborate in the next chapter on landforms and their evolution we are going to discuss. जो भी कुछ प्रोसेस होता है इरोजन या डिपोजिशन से उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है अर्थ के सरफेस पर, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट चैप्टर में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इरोजनल एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटी से किस तरीके के चेंजेस अकर होते हैं, कैसे बदलाव आते हैं, राइट। Now let's move to the next topic and the next topic is soil formation. मिट्टी का बनना। Students, you see that plants are growing in the soil, right? You play in the ground and come into contact with soil. It means you can touch and feel the soil. And soil at the time when you are playing, at that time the soils, you are in the connection of soil and at that time particularly you can feel it. So what it means, soil is a dynamic medium in which many chemicals, physical, biological activities, they all are going constantly, and later on we say that soil is a result of decay. It is also the medium for growth. Both the term are correct in reference of soil, right? सॉइल एक डायनामिक मीडियम होता है जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होता है, इसका बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, एक्टिविटीज होती हैं इसमें, और ये हमेशा एक कांस्टेंट चलने वाला प्रोसीजर है, राइट। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि सॉइल में ग्रोथ का सिस्टम होता है। हमने देखा है, वी ऑल कैन सी दैट इन द सॉइल लॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स दे आर ग्रोन लाइक प्लांट्स। जब भी एक सीड डाला जाता है मिट्टी में, उस सीड में से पौधा निकल जाता है,
तो ग्रोथ का सिस्टम है ना. सो इट इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी. इट इज मैनी कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट फ्लक्चुएट with the season. It may be alternative cold and warm or dry and more moist. According to season भी इस soil में काफी changes आता है. सीजन के अकॉर्डिंग मिट्टी ड्राई होती है, मॉइस्ट होती है, कोल्ड होती है या फिर हॉट भी हो सकती है. बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लोड और स्टॉप्ड इफ द सॉइल बिकम्स टू हॉट और टू कूल. वहीं अगर सीजनल वेरिएशन की वजह से अगर बहुत गर्मी हो जाए या बहुत ठंडक हो जाए तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक भी जाती है मिट्टी में, जिसकी वजह से लीव्स का गिरना या घास का सूखना, उसका डाई होना एक कॉमन सा प्रोसीजर है. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. स्टूडेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द थिन लेयर ऑफ सैंड of soil, which is very helpful, which is very important for the survival. So soil formation or pediogenesis depends first on withering. Soil formation सबसे पहले depend करती है withering के process पर. It is this withering mental depth of withered material which is the basic input for soil to form. ये वही withering material हैं जो कि depend करता है कि soil किस तरीके से बनेगा. So first the wither material or transported deposits are colonized by bacteria and other inferior plant bodies like mosses and lichens, right? And also several minor organisms may take shelter within the mantle and deposits. बहुत छोटे छोटे से organisms इन deposits के अंदर shelter लेते हैं. So the dead remains of organisms and plants help in humus accumulation. और जब इनके डेड रिमेन्स बचते हैं, मर जाते हैं मिट्टी में, तो इन्हीं का जो डेड रिमेन्स होता है वो एक तरीके से ह्यूमस एक्यूमुलेशन का काम करता है. सो माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स में ग्रो, लेटर बुशेस एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू सीड्स ब्रॉट इन बाय बर्ड्स एंड विंड्स. पहले क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल में छोटी छोटी घासें लगती हैं, थॉर्नी बुशेस लगती हैं और धीरे धीरे वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगने शुरू हो जाते हैं नेचुरली. ये सब क्यों होता है? क्योंकि विंड के प्रोसेस से या फिर बर्ड्स अपने साथ सीड ला करके वहां छोड़ देती हैं. तो प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डाउन, burrowing animals bring up particles, mass of material becomes porous and sponge like with the capacity to retain water and to permit the passage of air. Finally, a matter soil, a complex mixture of mineral and organic products form. तो फिर आगे चल के क्या होता है, प्लांट्स की रूट जो है वो काफी गहराई में चली जाती हैं, जिससे एनिमल्स को या अदर ऑर्गेनिजम्स को मिट्टी में अंदर जाने का मौका मिलता है, एयर को रिटेन होने का मौका मिलता है, वाटर को अंदर जाने का मौका मिलता है और इस पैसेजेस से फाइनली एक मेच्योर सॉइल तैयार होती है. मेच्योर सॉइल क्या होती है? एक बहुत ही ज्यादा मिक्सचर मिनरल्स का और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, जिसे हम लोग सॉइल कहते हैं, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. नाउ let's discuss about the soil forming factor, but let me introduce several things. First of all, students, the term pedology is soil science and the pedologist is a soil scientist. pedology का मतलब होता है soil science, ऐसा साइंस जिसमें सॉइल की स्टडी की जाती है, और pedologist एक ऐसा साइंटिस्ट जो सॉइल की स्टडी करता है. Now let me discuss about the soil forming factors. Students, there are 5 basic factors which control the formation of soils, and these 5 basic factors are parent material, topography, climate, biological activity, time, right? So in fact soil forming factor are in union and affect the action of one another as well. ये जितने भी 5 अभी मैंने soil factor बताए हैं, forming factor, ये यूनाइटली काम करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन. पैसिव कंट्रोल होता है, एक्टिव कंट्रोल नहीं होता. सो पेरेंट मटेरियल्स कैन बी एनी इन सीटू और ऑन साइट विदर्ड रॉक डेब्रीज.
इन situ और ऑन साइट मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो रॉक की विदरिंग हो रही है उसके डेब्रीज के ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से जो भी लेयर तैयार होती है उसे कहते हैं सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर and structure. Texture means size of debris and structure means deposition of individual grains, particles of debris. So as well as the minerals and chemicals composition of rock debris deposited. Right? Nature and rate of withering and depth of withering mantle are important consideration under parent material. Withering का क्या रेट है और withering कितनी गहराई से हो रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है सॉइल के लिए पेरेंट मटेरियल का। सो देयर मे बी अंडर पेरेंट मटेरियल्स डिफरेंट इन सॉइल ओवर सिमिलर bedrock and dissimilar bedrock. They may have similar soils above them, but when soils are very young and have not matured, these show strong links with the type of parent rock. जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा मिच्योर होती है, बहुत ही ज़्यादा कम मिच्योर होती है, बहुत ज़्यादा यंग होती है, तो उस समय सॉइल का बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है अपने पेरेंट रॉक से। लेकिन जैसे जैसे सॉइल मैच्योर होती जाती है उसमें अदर एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते जाते हैं। सो इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन एरिया वेयर द विदरिंग प्रोसेस आर स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर, सॉइल विल शो क्लियर रिलेशनशिप विद द पेरेंट रॉक। ऐसे एरियाज जो कि लाइमस्टोन एरिया है वहाँ पे विदरिंग का प्रोसेस स्पेसिफिक और पेक्यूलियर होता है, इसी वजह से सॉइल में ये जो रिलेशन है काफ़ी आसानी से दिखता है। सॉइल का अपने पेरेंट रॉक के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से नजर आता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब बनावट। सो टोपोग्राफी इज द पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। किसी भी टोपोग्राफी का इन्फ्लुएंस कितना है ये डिपेंड करता है कि एक्सपोजर का अमाउंट कितना है, सरफेस जो कवर्ड है पेरेंट मटेरियल से वो कितना एक्सपोज हो रहा है, इसकी वजह से सनलाइट की वजह से एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल। सो सॉइल विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड। राइट, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर सॉइल जो है उसकी थिकनेस कम हो सकती है और जैसे जैसे अपलैंड एरिया पर जाएंगे उसी सॉइल की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। So over gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is good, soil formation is very favorable. Soil over flat areas में develop a thicker layer. Flat area में जो soil है उसकी layer बहुत ज़्यादा thick है of clay with good accumulation of organic matter. और दूसरी और क्या खासियत है कि जो thicker material है, thicker area है soil का, उसमें organic matter जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सॉइल भी डार्क कलर की होती है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक क्लाइमेट। क्लाइमेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इवॉल्व इन सॉइल डेवलपमेंट्स। अब क्लाइमेटिक एलिमेंट्स कैसे इवॉल्व हो सकते हैं सॉइल डेवलपमेंट में? मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करता है कि मॉइस्चर के इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कितना है। इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड ड्यूरिनल, दीज आर सम ऑफ द रिलेटिव फैक्टर्स फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। सो प्रेसिपिटेशन गिव सॉइल इट्स मॉइस्चर कंटेंट। राइट, बारिश से मिट्टी को मॉइस्चर कंटेंट मिलता है which makes the chemical and biological activities possible। और मॉइस्चर की वजह से बहुत सारी केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल होती हैं। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर बहुत ज़्यादा है तो वो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ग्राउंड वाटर में जाने की कोशिश करेगा। राइट, और अपने साथ सॉइल कंपोनेंट्स को भी बहा करके ले जाएगा अंदर की तरफ और इसे एल्यूविएशन कहा जाता है। एंड डिपॉजिट द सेम डाउन बिलो, और जब इन्हें ले जा करके डिपॉजिट करते हैं तो उसे एल्यूविएशन कहा जाता है। सो इन क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक
wet equatorial rainy areas, high rainfall, not only calcium, sodium, magnesium, potassium, etc., but also major part of silica is removed. तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल रेनी सीजन वाला एरिया या फिर हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया, वहाँ पर आपको सॉइल में कुछ मिनरल कंटेंट लाइक केमिकल, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ सिलिका is removed from soil. So removal of silica from the soil is known as dissilication. मिट्टी से सिलिका का रिमूव हो जाना डिसिलिकेशन कहलाता है. So in dry climates, because of high temperature, evaporation exceeds precipitation and hence groundwater is brought up to the surface by capillary action. इसमें क्या होता है बेटा, ड्राई क्लाइमेट एरिया में टेम्परेचर और इवेपोरेशन दोनों वर्क करते हैं, और एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एरिया में जो ग्राउंड वाटर होता है, वो ग्राउंड वाटर जो भी मिनरल्स होते हैं सॉइल के, उनको ट्रांसफर कर देता है. और इन सब की वजह से क्या होता है, मिट्टी के अंदर सॉल्ट का इंक्रीमेंट हो जाता है. सो सच सॉल्ट्स फॉर्म इनटू अ क्रस्ट इन द सॉइल नोन एज हार्ड स्पेन. और ऐसा सॉल्ट जो कि क्रस्ट में बनता है उसे हार्ड पैन्स कहा जाता है. So in tropical climate and an area of intermediate precipitation condition, calcium carbonate nodules, which is also called kankar, are formed. Student, temperature also act in two ways: increasing or reducing chemical and biological activity. Chemical activities increase in higher temperature, reduce in cooler temperature. Only the carbonation is a kind of exception. कार्बोनेशन में ही हाई टेम्परेचर या रिड्यूस टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब में हाइयर टेम्परेचर और रिड्यूस कूलर टेम्परेचर इसका बहुत इफेक्ट होता है. इससे केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक जाती है. सो दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाइयर टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल्स, एंड इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन सॉइल कंटेन लार्जली मैग्नेटिकली ब्रोकन मटेरियल. Now, biological activity. Students, the vegetative cover and the organisms that occupy the parent material from the beginning and also at later stages, this help in adding organic matter in the soil. So, moisture retention, nitrogen, etc. Dead plants provide us what? They provide us humus, the finely divided organic matter. Some organic acid which formed during humidification and decomposing the minerals of the soil parent material. So intensity of bacteria activities show up difference between soil of cold and warm. अब आप यहाँ देखिए, बैक्टीरियल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी. Clear? And we know that bacteria are very important for us. किस तरीके से important है? Because they maintain the soil fertility. For example, like rhizobium. Rhizobium is a type of bacteria, and the work of rhizobium is to fix nitrogen in the soil. And mostly in the legume plant, they are found. So overall they are very beneficial. Now the last is time. Time is also a kind of factor, controlling factor for soil formation. For example, the alluvial soil is of two types according to time. One is called Bangad and second one is called Khadar. The Bangad is also called old soil and the Khadar is called new soil. And how we classify the Bangad and Khadar? According to the formation, according to the time required for formation. So a soil becomes mature when all soil forming process act for a sufficient long time. जब ये जितने भी अभी हमने डिस्कस किए सारे फैक्टर वर्क करें और लंबे समय तक वर्क करें,
तब जाकर के एक प्रोफाइल तैयार होती है सॉइल। So soil developing from recently deposited alluvium or glacier till are considered young and they exhibits no horizon or only poor developed horizon. एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी यंग माउंटेनियस एरियाज हैं वो पूरा एरिया ऐसे ही सॉइल का है. So hope you guys understand the entire term well. Now thank you and have a nice day.